सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कांग्रेस की प्रेस वार्ता, जिसे संबोधित कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में गली कूच, हम उत्तराखंड और गोवा में बेहतर जनता का मन नहीं जीत पाए, विजय के आंकड़े तक नहीं पहुंच। सीख है कि हमें धरातल पर और अधिक मेहनत करने की। हमने इस चुनाव को जातिवाद के मुद्दों से दूर रख, चाहे वो ढांचागत विकास हो, परंतु ये भी सच है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से जुड़े इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। हम चुनाव हारे या जीते, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है। हम जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ढांचागत विकास को, इन सब मुद्दों को जिम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे। हम हार के कारणों पर गहन दृष्टि से आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों करेंगे, संगठन पर काम करेंगे और भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और पांचों राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्य समिति करेगी। हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं, पर हताश नहीं। हम चुनाव हारे हैं, पर हिम्मत नहीं हारे। हम कहीं नहीं जा रहे। हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए, और वो जीत जनता की जीत हो। हम लौटेंगे नए बदलाव के साथ, नई रणनीति के साथ। सभी विजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और पांचों राज्यों की जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। I'll say it are not as per our expectations. We expected far better results in Goa. Of the 5 election going states are not as per our expected far better results in Goa, in Uttarakhand, and we accept The incumbency of 4.5 years under Sardar Amrinder Singh, we could not overcome. People voted for a change, and we congratulate for Punjab the Aam Aadmi Party, Sardar Bhagwant Mann, as also Shri Arvind Kejriwal. In Uttar Pradesh, we were able to resurrect and revive the Congress party up to the grassroots, in every village and in every town of Uttar Pradesh. But it's a fact that resurrection and the fight, determined fight that the Congress party put up, has not got converted into seats in this election. We did fight a determined, we did put up a determined fight in Uttarakhand and Goa, but we could not achieve the mark of victory. And that's a lesson that we will learn to work harder as also alongside the people. Indian National Congress stood out as a party in these elections, which ensured that the issues of division, of hatred, of religious polarization, and of caste division, vis-a-vis the issues that we put up
of runaway inflation, of unemployment, of a sinking economy, of better infrastructure, of better health and education. It does seem that did overtake these fundamental issues affecting the life of people. Whether we win or lose an election, Indian National Congress stands in solidarity with people of India. We shall continue to espouse and champion people's voice vis-a-vis the issues of unemployment, of inflation, of those affecting their lives, of sinking economy, issues relating to creation of better and better placed infrastructure, be it in the field of education, health, power or other sectors, and we shall continue to work with people. We are disappointed, but we are determined to work back with the people of India, as also to resurrect ourselves from the grassroots by having a detailed introspection. Very soon, Honorable Congress President Srimati Sonia Gandhi will be calling a meeting of the Congress Working Committee to discuss threadbare all the issues which affected us in the 5 election going states. Once again, I take this opportunity to congratulate all the winners in all the 5 election going states. I also thank all the Congress leaders and workers in the 5 election going states for the hard work, zeal and dedication that they worked to make the party a success, although we haven't succeeded. I also extend my best wishes to people in these 5 states for a better future for working with the new governments. Any questions? I'm happy to take one by one. I'll come back to you. एक उत्तर प्रदेश से, एक पंजाब से। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा की मुहिम काम नहीं आई चुनावी नतीजों के तौर पे, और दूसरा पंजाब इसमें की उम्मीद ये की जा रही थी आपकी पार्टी की तरफ से ही कि किसान आंदोलन के बाद ज्यादा अच्छी उम्मीद है सरकार रिपीट करने की, लेकिन क्या वहाँ आंतरिक कलह जो है वो पार्टी को खा गई? आदरणीय साथी, उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लड़कियां लड़ सकती हैं वो कभी हारती नहीं। लड़कियां दृढ़ता से खड़ी हैं, लड़ी हैं और लड़ती रहेंगी। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी का तिरंगा पहुंचा, हमारा काडर क्रिएट हुआ। हर मुद्दे पर जो उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े थे, श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी। ये सही है कि हम उसे जनमत में इस बार नहीं बदल पाए, पर हमें भी विश्वास है कि वो बीज जो प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अंकुरित किया है, वो बीज एक दिन वट वृक्ष बनकर उभरेगा। पंजाब में आपने कांग्रेस पार्टी के वैचारिक भिन्नता का मुद्दा उठाया। मैं ये कहूंगा पंजाब ही क्यों, हर प्रदेश के अंदर, प्रदेश में जो हमारे नेतागण हैं, हमारे साथी हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कहीं उस पेड़ को तो नहीं काट रहे जिस पर हम सब बैठे हैं। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीति में पद पाने की इच्छा इतनी मुखर तो नहीं हो गई कि हम कांग्रेस पार्टी को हराकर दूसरी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं। जब मैंने अंतर मंथन और आत्म विश्लेषण की बात की तो मुझे खुले मन से यह कहने में दिक्कत नहीं कि हर प्रदेश के अंदर जहां चुनाव है वहां भी, जहां चुनाव होंगे वहां भी, और जहां चुनाव होने हैं वहां भी, प्रदेश के हर नेता को समेत मेरे, हम सबको बजाय केवल राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर देखने के ये आत्म विश्लेषण जरूर करना पड़ेगा कि क्या हम उस पेड़ को ही तो नहीं काट रहे जिस पर हम खुद बैठे हैं। अगर हम उस टहनी को ही काट देंगे तो माफ कीजिए, फिर पेड़ भी गिरेगा, टहनी भी गिरेगी
और नेतागण खुद भी गिरेंगे, जैसा कई राज्यों के परिणामों से सामने आया है। इसलिए आज इस मंच से बड़ी बेबाकी से और मुखरता से मैं ये कहना चाहूंगा, विनम्रता से भी कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के साथियों को कि हमें उन प्रांतों में भी जहां हम चुनाव हारे हैं और उन प्रांतों में भी जहां भविष्य में चुनाव होंगे, हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रजातंत्र की गरिमा के अनुरूप हो। जब वो राजनीतिक दल जिसके हम हिस्सा हैं उसी का नुकसान करेगी, जब उस पेड़ का ही नुकसान करेगी जिसकी टहनी पर हम बैठे हैं, तो वो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत नुकसान में बदल जाएगी, जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। जनता को ऐसा क्या दिखा कि उनको बेरोजगारी, किसान आंदोलन, साल भर 3 किसान जो बिल थे और कोरोना के बाद जो इफेक्ट एमएसएमई और इन सबको पड़े, वो सब इग्नोर किए जनता ने। और दूसरा, पंजाब में व्हाट वेंट रॉन्ग कि आपने चन्नी जैसे फेस लाइव एससी में आगे एक नैरेटिव आप लोग सोच रहे थे, वो कुछ चुनाव दोनों सीटों से आए। आपने 2 प्रश्न पूछे आदरणीय मित्र, और मैं दोनों का जवाब आपको दूंगा। मैंने बड़े खुले मन से आपको कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह प्रयास किया कि चुनाव में हिंदू मुसलमान, जात पात, क्षेत्रवाद, भावना में बहे जाने वाले मुद्दे, उनसे उठकर जनता की जिंदगी से जुड़े सार्थक मुद्दे, राहुल गांधी जी हो, वो प्रियंका गांधी जी हो, वो कांग्रेस के हर नेता हो, हमने ये प्रयास किया कि वो मुद्दे चुनाव का केंद्र बिंदु बने। वो बेरोजगारी हो, वो कमर तोड़ महंगाई हो, वो डूबती अर्थव्यवस्था हो, वो शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो। परंतु लगता है प्रथम दृष्टि से कि भावनात्मक मुद्दे जनता के इन सार्थक मुद्दों पर हावी हो गए। पर जैसा मैंने कहा, प्रजातंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है और मैं इस मन से न जनता के निर्णय पर, न उनके न्याय पर, न उनके विवेक पर कोई प्रश्न उठाऊंगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जागरूक पत्रकार के तौर पर आप सबको भी इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। दूसरी बात आपने कही पंजाब में नेतृत्व बदलाव की। पंजाब में 4.5 साल से एंटी इनकम्बेंसी थी और 99.9% विधायकों ने एक स्वर से वहां नेतृत्व परिवर्तन की मांग की। हमने केवल उस मांग को स्वीकारा, हमने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है कि अगर वो मांग ना स्वीकारते तो फिर आप बोलते कि कांग्रेस का शीर्षतम नेतृत्व है वो ऑटोक्रेटिक है, वो विधायकों की बात नहीं सुनते। और 111 दिन की सरकार में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने, जो एक साधारण दलित परिवार से आते हैं, एक सबल नेतृत्व भी दिया, एक बेहतरीन सरकार भी दी, और वो सारे निर्णय जिनका और लोग वादा करते थे, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर उनका क्रियान्वयन कर दिया। अब कोई ऐसा निर्णय नहीं बचा जो किसी पार्टी ने वादा किया हो जो कांग्रेस ने उसका क्रियान्वयन जमीन पर ना कर दिया। जैसा मैंने कहा, सब नेताओं को पंजाब समेत अब अंतर्मंथन और आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि कहीं हम सब उस टहनी को तो नहीं और पेड़ को तो नहीं काट रहे जिसकी टहनियों पर हम बैठे, और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कहीं दूसरी पार्टियों के फायदे और खुद की पार्टी के नुकसान में तो नहीं बदल गई है। उस सत्ता की आकांक्षा इस हद तक, इस कदर तो नहीं बढ़ गई कि हम विरोधी की मदद और खुद के पक्ष का नुकसान करने में लग गए हैं। पार्टी के हर कार्यकर्ता, प्रदेश के हर नेता को इस पर चिंतन करना पड़ेगा। I have a lot of questions, but I'll just be brief. I'll come to you after him and you ask. I'll come to you after. I have a lot of questions, but I'll just be brief because one is how long will the party be in denial about the leadership issue? Because of the fact we can see here that you can keep blaming various other people, and you've shown humility today of accepting and felicitating others. But somewhere down the line is the leadership issue. And I'm not even getting and spelling it further because you know what I imply. Would like to know whether you all will address this issue, number one. Number two, secular unity in states like Goa and Uttarakhand, which if you analyze has been
completely frittered away, and that is allowed what has happened. And now you have to counter an AAP, not only in Punjab, which is been taken over, but even in Himachal. So how are you going to answer these issues? My dear friend, today perhaps is not the day